सर होस्ट वापस से बना दीजिएगा हमको. Okay, so yesterday we have discussed about and we have started about the drainage system of Himalayan rivers. And among Himalayan rivers, first of all, we have discussed about Indus River system. And you know that the origin place of Indus River Indus. Yeah, what is the origin place of River Indus? I have already discussed yesterday. Can you name the origin place of River Indus? Tibet near Mansarovar Lake. Yes, very good. Tibet near Mansarovar Lake. और कैलाश पीक भी कह सकते हो, glaciated part of कैलाश पीक. That is the origin place of River Indus. And can you tell me what is the flowing direction of Indus after originating from Tibet? Indus flows from which direction to which direction? East to west. Yes, east to west, towards west. And name the state where River Indus first entered when it When Jammu Kashmir in Ladakh. Yes. Yes, River Indus in India, the course of River Indus begins from the region of Jammu and Kashmir, in the region of Ladakh of Jammu and Kashmir. Here River Indus flows from Gilgit-Baltistan and then entered to the region of Pakistan. ठीक है, तो यहाँ पे गिलगिट और बल्तिस्तान से होते हुए गुजरती है and then turn towards southwest, entered in the region of Pakistan. And at Mithankot, River Indus is joined by its several tributaries like Satluj, Beas, Ravi, Chenab, Jhelum. And the joint streams of River Indus with these 5 tributaries, they finally fall into Bay of Arabian Sea. In the region of Jammu and Kashmir, from both sides, from north and from south, many tributaries also join River Indus, and they are known as the Jaskar, the Nubra, the Shyok, the Hunzas, from the north of the region and from as well as from the south of the region. Here it flows through valley areas and then entered in the region of Pakistan. The total length covered by River Indus is about 2,900 kilometers, but on one more than just slightly more than 1/3 of area lies in the region of India. ठीक है? So in India, it covers almost about 1,800 kilometers of length, and it has very gentle slope. It presents very fertile land, and that helps in cultivation of varieties of crops, especially in Indus Basin is known for growing wheat cultivation. As we know that most of the course of River Indus is either in Tibet or in Pakistan. So under Indus Water Treaty, as River Indus covers both the region of India and Pakistan, that create some tensions between India and Pakistan, and for that, for removing all this type of tension, Indus Water Treaty was made in 1916 for the purpose to distribute the water of River Indus for the economic development of both India and Pakistan. And according to this treaty, India can only use 20% of the total water of River Indus, and rest water is used by region of Pakistan. As we all know that only the one major river, that is Indus, lies in the region of Pakistan, and that contributed in the economic benefit of or economic development of that countries, especially the development of agriculture is based on the use of water of River Indus in the region of Pakistan. Now, the second most important river of India, which provides the largest basin to India, is Ganga river system. And Ganga
The name Ganga is basically Ganga river system is generally originated from in the form of two head streams. The headwater of Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri glacier and is joined by Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains onto the plain. Ganga जो है, इसका origin क्या है? What is the origin place of Ganga? गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर में गंगा किस तरीके से ओरिजिनेट कर रही है? इन द फॉर्म ऑफ टू हेड स्ट्रीम्स। जब गंगोत्री ग्लेशियर पिघल रहा है तो उसमें दो चैनल निकलता है वहां से, ठीक है। भागीरथी, भागीरथी निकलता है जो आगे बढ़ने के बाद देवप्रयाग के पास अलकनंदा से जाकर मिलता है, और इन दोनों का जो ज्वाइंट स्ट्रीम्स है वो कहलाता है गंगा। और पूरा आपका उत्तराखंड का एरिया में गंगोत्री ग्लेशियर से लेकर देवप्रयाग एंड देन हरिद्वार तक गंगा का जो अपर कोर्सेस है मेनली माउंटेनियस एरिया को कवर करता है। एंड फ्रॉम हरिद्वार गंगा इंटर्ड फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन। हरिद्वार के बाद गंगा जो है माउंटेन्स में दिखती है और उसके बाद वहां से प्लेन की ओर मुड़ती है और प्लेन में उतरती है अपने मिडिल कोर्स के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ऑलवेज पूछा जाता है, नेम द टू हेड स्ट्रीम ऑफ रिवर गंगा। क्या क्या लिखेंगे? टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ रिवर गंगा में क्या दोगे तुम लोग? टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ रिवर गंगा, एनीवन? What is the name given to the two head stream of river Ganga? Now note down. हाँ, भागीरथी एंड अलकनंदा। जब दोनों हेड वाटर्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं देन इट इज नेम्ड एज रिवर गंगा। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, या व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा? गंगोत्री ग्लेशियर। अच्छा शिवम, हाँ गंगोत्री। शिवम कुछ पूछना चाहता है, पूछो बेटा। यस शिवम। Gorge, in which type of terrain does a gorge form? शिवम का क्वेश्चन है gorge क्या है, gorge किसको कहते हैं? तो gorge is the name given to I-shaped valley, ठीक है। I-shaped valley को हम gorge के नाम से जानते हैं। ये देखो, ये हम बुक ऐसे दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा है बुक को हम जो उल्टा ऐसे कर दिए हैं, समझ में आ रहा है? तो माउंटेनियस एरिया में मोस्टली गॉर्जेस का फॉर्मेशन होता है। कब होता है? जब रिवर अनइवन हाई माउंटेनियस ट्रैक से होकर गुजरते हैं। ये दोनों हिस्सा जो है सीरा है, दैट रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ हार्ड रॉक, और ये बीच का जो खाली हिस्सा दिख रहा है आपको, दैट रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ सॉफ्ट रॉक। जब रिवर फ्लो करती है तो हार्ड रॉक को ज्यादा नहीं काट पाती है, और जब वो जाकर बीच में आगे बढ़ती है तो वहां पे जो सॉफ्ट रॉक होता है उसमें डीप डाउन कटिंग करती है। फिर उसके बगल में आगे और आगे बढ़ती है, जब पानी पूरा भर जाता है और आगे से ओवरफ्लो करती है तो फिर हार्ड रॉक का रीजन है जिसको वो काट नहीं पाती है। तो इन द रीजन ऑफ माउंटेन्स वेयर अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स आर फाउंड, देयर रिवर cut the soft rocks and make deep down cuttings in between two hard rocks. If deep down cutting is done by river in between two hard rocks, if soft rocks is eroded by river, that make the structure like I shape, and that type of deep soft rock cutting in between two hard rock regions that create I-shaped valley, and that I-shaped valley is called gorges, mostly found in the higher mountainous regions where alternate hard and soft rocks are found. जहाँ पे हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स अल्टरनेटिवली मिलता रहता है, वहीं पर रिवर सॉफ्ट रॉक को काट देती है और हार्ड रॉक्स रिमेन वैसे ही हो जाता है, और सॉफ्ट रॉक को काटते काटते डीप डाउन कटिंग करती है। तो वैसा आई शेप्ड वैली, आई के शेप का जो वैली बनता है उसको हम लोग गॉर्जेस कहते हैं, ठीक है।
Gorges are in India. Gorges are mostly found in the region of Himalaya. हालांकि आप जब नर्मदा का बेसिन पढ़ेंगे, नर्मदा रिवर सिस्टम, तो देखेंगे कि वहां पे एक नैरो ट्रफ के बीच में ऑलरेडी जो आई शेप्ड वैली लाइक का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, वहां से रिवर होकर गुजरती है और पिक्चर एक लोकेशंस प्रोवाइड करती है विच प्रमोट टूरिज्म. लेकिन मोस्टली आई शेप्ड वैलीज आर फाउंड in the region of in the mountainous areas which is made up of sedimentary rock. क्योंकि sedimentary rock में ही sedimentation होता है और कई तरह का hardened rock soft particles पाए जाते हैं. तो ज्यादातर इंडिया में ये आपका हिमालयन रीजन्स में पाए जाते हैं. शिवम, so do you have any confusion? No, ma'am. और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो हम लोग आगे गंगा रिवर सिस्टम में बढ़ जाएं. यस यस, कैन वी से दैट इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, क्या लिखा है? इंडस एंड ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ गॉर्ज. ये तो रिवर है दैट क्रिएट गॉर्जेस. जैसे कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है दिहांग, ठीक है ना. ये आपका अरुणाचल प्रदेश के एरिया में डीप गॉर्जेस का फॉर्मेशन करते हैं. तो कह सकते हो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है. गॉर्जेस का फॉर्मेशन बेसिकली रनिंग वाटर या रिवर के द्वारा ही होता है. जैसे कि हम लोग मोरेन्स पढ़े हैं पहले, जब 6-7 में पढ़े होंगे रोल ऑफ एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, तो उसमें मोरेन पढ़े थे. तो मोरेन जो स्ट्रक्चर है वो ग्लेशियर के एक्शन से बनता है. उसी तरीके से गॉर्जेस जो स्ट्रक्चर है माउंटेनियस एरिया में, ये रिवर के एक्शन से बनता है. जो मशरूम रॉक्स या सैंड ड्यून्स स्ट्रक्चर है डेजर्ट में, वो विंड के एक्शन से बनता है. तो अलग अलग एक्शन से अलग अलग तरह की आकृति बनती है. नेम ऑफ रोल ऑफ एजेंट ऑफ ग्रेडेशन में वेरी. कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि विंड जो है आई शेप्ड वैली बनाती है. आई शेप्ड वैली और गॉर्जेस आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय रिवर, ठीक है. उसी तरीके से सर्क्स जो बनता है माउंटेनियस एरिया में, और जो मोरेन्स बनता है वो मोस्टली ग्लेशियर्स के द्वारा बनता है, ठीक है. उसी तरीके से ऑक्सबो लेक बनता है नेचुरली एक्शन ऑफ रिवर से बनता है. वो ग्लेशियर से ऑक्सबो लेक जल्दी नहीं बनता है. ये अलग बात है कि कभी कभी ग्लेशियर से जो पानी पिघल रहा है वो पानी जमा हो जाए ऑक्सबो लेक में, दैट इज डिफरेंट. लेकिन जो स्ट्रक्चर बनता है वो ज्यादातर रिवर के एक्शन से बनता है, ठीक है. तो हम ब्रह्मपुत्र और इंडस को गॉर्ज नहीं कहते हैं, बल्कि इनके द्वारा बनाया जाता है. तो ये बात समझ में आई आपको? रिवर को ही गॉर्ज नहीं कहेंगे. अब जैसे कि मियांडर्स है, मियांडर्स स्ट्रक्चर जो है जिगजैग पाथ क्रिएटेड बाय रिवर ही बोलते हैं उसको. और ये जिगजैग पाथ कभी भी अपर कोर्सेज या माउंटेनियस कोर्सेज में नहीं होता है, ऑलवेज मिडिल या लोअर कोर्स में होता है, जब रिवर का 3 एक्शन होता है रिवर का, ठीक है. या कोई भी एजेंट ऑफ ग्रेडेशन का 3 प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है. एक होता है इरोजन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा होता है डिपोजिशन. तो जब हम मियांडर्स की बात करेंगे तो नेचुरली वो रिवर का डिपोजिशनल एक्शन से बनता है, और जब हम आई शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली की बात करेंगे तो वो नेचुरली रिवर का इरोजनल एक्शन से बनता है, ठीक है. तो मियांडर्स जब भी बनेगा तो कभी भी माउंटेनियस कोर्स में नहीं बनेगा. कहाँ बनेगा? प्लेन एरिया में. प्लेन एरिया में जहाँ पे रिवर का मेन एक्शन जो होता है वो डिपोजिशन होता है. तो आगे बढ़ जाए. एनी क्वेश्चन? टेल मी यस और नो, नहीं तो फिर 4 ही लाइन में अटके रहेंगे बेटा. बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? No. हाँ, ओके, ठीक है. तो अब हो गया ये क्लियर. बीच में और किसी को कोई होगा क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं. The Ganga is joined by many tributaries from Himalayas, a few of them being major rivers such as Yamuna, Ghaghra, the Gadak and the Kosi. ऐसे तो
गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, और कोई जरूरी नहीं है कि सारी ट्रिब्यूटरीज हिमालय से ही आए। कुछ ट्रिब्यूटरीज गंगा की ऐसी भी हैं जो पेनिनसुलर प्लेटो से ओरिजिनेट होती हैं और नॉर्थवर्ड फ्लो होते हुए गंगा को ज्वाइन करती हैं। लेकिन हिमालय से निकलने वाली कई सारी नदियां जो हैं वो गंगा से छोटी हैं और अपने आप को गंगा में ड्रेन करती हैं, जिसकी वजह से वो गंगा की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। जिसमें से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? विच इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा? कोई बताएगा अपने से? कोई यमुना। बताए? यस, वेरी गुड, यमुना ही है सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट। गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज कौन है? यमुना है। जिस तरह से गंगा का फ्लो आपका दिखता है 2400-2500 किलोमीटर, इसी तरह से यमुना का भी लेंथ काफी है और ये आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। और यमुना का ओरिजिन प्लेस कोई बताएगा? यमुनोत्री ग्लेशियर। यस, वेरी गुड। यमुना का ओरिजिन प्लेस यमुनोत्री ग्लेशियर है, जस्ट लोकेटेड बिहाइंड गंगोत्री ग्लेशियर, और वहां से यमुना निकलती है और इलाहाबाद के गंगा के जस्ट पैरेलली फ्लो करती है। आपको ड्रेनेज का जो बुक में फिगर दिया हुआ है, फिगर 3.4, उसमें आप देखेंगे कि गंगा रिवर के जस्ट पैरेलली यमुना फ्लो कर रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए, और जाकर यमुना जो है रिवर गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ? इलाहाबाद के पास। उसी तरीके से आप देखेंगे मैप वाला पोर्शन एक बार देख लो। रिवर शारदा, एक रिवर गोमती भी है जिसका एग्जिस्टेंस आजकल थोड़ा खत्म हो गया है, ठीक है ना? वो इतना ज्यादा डिपोजिशन और पेबल्स वगैरह हो गया है कि आजकल वो दिखती नहीं है। तो रिवर शारदा नेपाल हिमालय से निकल रही है, जो कि घाघरा को ज्वाइन करती है। रिवर घाघरा, रिवर गडक, रिवर कोसी, और नीचे से देखोगे कि रिवर सोन जा रही है, जो डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन कर रही है। दिख रहा है मैप में आप लोगों को? Yes, मैप ma'am. 3.4 देख रहे हो? एक बार हमको शो करो तुम लोग की स्क्रीन, दिखाओ कितने लोग बुक खोले हुए हैं। हाँ, वहां पे मैप में देखो गंगा को, जितनी भी गंगा से छोटी नदी जो हिमालय से निकल रही है उसमें कौन कौन सा है? सबसे पहले तो यमुना, जो जस्ट गंगा के बगल से राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी कहलाती है, क्योंकि गंगा के राइट साइड से आकर यमुना ज्वाइन कर रही है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी एक नंबर में आता है, नेम द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। क्या लिखेंगे आप लोग इसमें? रिवर यमुना। और उसके बाद नॉर्थ से आने वाली, नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा दैट ज्वाइन गंगा फ्रॉम लेफ्ट साइड। हिमालयन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? तो शारदा है, शारदा घाघरा को ज्वाइन करती है, इसका ज्वाइंट स्ट्रीम जो है रिवर गंगा को ज्वाइन करती है। फिर नेपाल हिमालय से निकल के गडक है जो ज्वाइन कर रही है, देख रहे हो ना? गडक के बगल में और जाएंगे राइट साइड में तो कोसी है। कोसी और गडक, कोसी जो हमेशा कभी मतलब हमेशा बाढ़ के लिए, ओवर फ्लड के लिए फेमस रहा है। तो ये सारी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है रिवर गंगा की। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में रिवर यमुना आता है। और नेम द ट्रिब्यूटरीज दैट ज्वाइन रिवर गंगा फ्रॉम साउथ, इसमें कौन सा नदी आएगा देख के बताओ, जो डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन कर रही है, जो हमारे बिहार में भी है? कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? बताओ कौन सी नदी ज्वाइन कर रही है? मैप खुला हुआ है ना? रिवर सोन है, डेरी ओन सोन, नाम सुना है ना? Yes. सुना है कि नहीं सुना है? रिवर सोन है जो साउथ से डायरेक्टली ज्वाइन कर रही है। सो द रिवर यमुना rises from Yamunotri Glacier in the Himalayas. It flows parallel to the Ganga as a right bank tributary, meets Ganga at Allahabad. The Ghagra, the Gadak, the Kosi rise in Nepal Himalaya. They are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property. जो आपका गडक और कोसी है, that is mostly over flooded almost every year. आप जानते हैं कि फ्लड का सिचुएशन कहाँ आता है ज्यादा? जो एरिया माउंटेन कैचमेंट एरिया में होता है, वहां पे प्लेन में जो बारिश होगी सो होगी, पहाड़ से भी पानी बह बह कर कहाँ आ जाएगा? प्लेन में।
तो पहाड़ पर भी जो बारिश हुआ वो भी उसका वैली एरिया में आएगा, प्लेन में भी जो बारिश हुई वो भी उसकी नदी में आएगी, जिससे कि बरसात में ज्यादातर ये सारी रिवर ओवर फ्लडेड हो जाती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से करीब करीब नॉर्थ बिहार में हर साल फ्लड आता है। दे ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। दिस फ्लड ऑलवेज कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जबकि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। वो इम्पैक्ट क्या है? दिस फ्लड रिन्यू द सॉइल ऑफ गंगा बेसिन ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हर साल एक लेयर सिल्ट सैंड इसका जमा हो जाता है, फर्टाइल लेयर, जो कि यहाँ की फर्टिलिटी को और ज्यादा बढ़ाता है और प्रोडक्शन को और ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। हम लोग आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर्डनेस होता है, फ्लड प्रिपेयर्डनेस, जिसको ये करके जिसको मेंटेन करके हम धीरे धीरे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स को थोड़ा कम कर रहे हैं और इसका कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं। अब तो कई जगह डैम वैम भी बनने लगा है और वो पानी का यूज करके थ्रू मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट हम लोग कई सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे हैं और ड्रायर एरिया को पानी भी सप्लाई कर रहे हैं नदियों को जोड़ करके, ठीक है। द मेन ट्रिब्यूटरीज which come from peninsular uplands are Chambal, Betwa and the Son. These rises from semi-arid areas and have shorter courses and do not carry much water in them. Find out where and how they ultimately join Ganga. गंगा की कुछ ऐसी भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो सदर्न पार्ट से आती हैं, जिसमें चंबल, बेतवा, केन और सोन आती है। तो चंबल, बेतवा, केन जो हैं, they first join river Yamuna and the joint stream of Chambal, Betwa, Ken and Yamuna join river Ganga near the region of Allahabad, and Son, river Son directly join river Ganga. तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि ये सारी ट्रिब्यूटरीज गंगा को कैसे ज्वाइन करती है, तो चंबल, बेतवा जो है they first join river Yamuna, the biggest tributaries of river Ganga, and the joint stream of Chambal, Betwa and Yamuna join river Ganga near Allahabad, whereas Son directly join river Ganga, ठीक है ना। Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries. So question में name some left bank tributaries, name some right bank tributaries. How Chambal, Betwa join river Ganga, ठीक है ना। From where river Son join river Ganga. Name the largest right bank tributaries of river Ganga, ठीक है। तो ये सब आपका कॉमन क्वेश्चन है। इसके अलावा जब ये सारी नदियां रिवर गंगा को ज्वाइन करती है तो गंगा का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? ये बताओ, गंगा का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? Increase. हाँ, बढ़ेगा। तो वही बता रहा है, इनलार्ज विद द वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन द वेस्ट बंगाल। अब गंगा प्लेन में आ चुका है पूरा और सब नदियां इसमें आकर मिल चुकी हैं पहाड़ से उतर उतर कर। अब गंगा इनका ज्वाइंट स्ट्रीम के साथ चौड़े पार्ट में पूरे वॉल्यूम के साथ फ्लो कर रही है प्लेन में, और तब तक वो प्लेन एरिया में फ्लो करते रहती है जब तक कि वेस्ट बंगाल का फरक्का जोन नहीं आ जाता है। फरक्का इज लोकेटेड एट द वेस्ट बंगाल। ये फरक्का को क्या कहते हैं? नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वहां तक ये आपका प्लेन एरिया में रिवर गंगा फ्लो कर रही है। दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। द रिवर बाइफरकेट्स हियर। फरक्का के बाद फिर और लोलैंड एरिया शुरू हो जाता है, ठीक है। और लोलैंड एरिया शुरू होता है ड्यू टू, और वहां पे डिपोजिशनल एक्शन। अब जो गंगा जो है वो थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है ना। माउंटेनियस एरिया में यंग थी, काफी उछल कूद और तेजी के साथ काटने का काम कर रही थी और फ्लो कर रही थी। मिडिल एज में थोड़ी मैच्योर है, सबको साथ लेकर चल रही है। अब फरक्का तक आते आते गंगा जो उतना लोड लेकर चल रही है वो थोड़ी थक जा रही है, थक गई है, जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं तब ये अपना डिपोजिशन स्टार्ट करती है एंड यहाँ से गंगा टर्न करती है साउथवर्ड। यहाँ पे डिपोजिशन होने के कारण गंगा जो है कई चैनल में डिवाइड होना शुरू करती है। पहले 2 पार्ट में डिवाइड होती है,
क्या नाम दिया गया है? भागीरथी एंड हुगली। गंगा का हेड स्ट्रीम में भी भागीरथी नाम कॉमन है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज में भी नाम आ रहा है भागीरथी का। ठीक है, हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा में भी भागीरथी है, डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा में भी भागीरथी है। तो फरक्का के बाद गंगा साउथवर्ड टर्न कर रही है। डिपोजिशन ज्यादा होने की वजह से बीच में सैंड ड्यून्स वगैरह, स्पीड बार वगैरह बन जाने की वजह यहाँ पर रिवर जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट, फिर फर्दर 4 पार्ट में, 4 फर्दर 16 पार्ट में, ऐसे ऐसे करके डिवीजन होता है। और इस तरीके से नदर्न टिप के साथ ट्रायंगुलर लैंड मास का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द डिपोजिशनल एक्शन ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, और यहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की शुरुआत होती है। सो फ्रॉम फरक्का द रिवर बाइफरकेट्स हियर, भागीरथी Hooghly, a distributaries flow southward through the deltaic plains to the Bay of Bengal. The main stream, गंगा का दो पार्ट हो गया, भागीरथी हुगली, और मेन जो गंगा है वो और आगे बढ़ती रहती है। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड, किधर हम बताए ना, टर्न किया साउथ में, साउथवर्ड आगे बढ़ती जाती है into Bangladesh and is joined by Brahmaputra further downstream। और नीचे और लोलैंड की ओर जाते हैं, साउथवर्ड फ्लो करते करते गंगा बांग्लादेश में इंटर करती है। बांग्लादेश में जाकर ये ब्रह्मपुत्र रिवर आकर इसको मिलती है। ठीक है, और द ज्वाइंट स्ट्रीम ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड मेघना। ये बहुत समझ लो कि गंगा भी उतनी ही विशाल, ब्रह्मपुत्र भी उतनी ही विशाल, और इन दोनों को मिलाकर मिलती है जब बांग्लादेश में, तो वो कहलाती है मेघना। माइटी स्ट्रीम्स इसको कहा जाता है। ठीक है ना, द माइटी रिवर, ये मेघना। सोच लो, गंगा भी अपने वॉल्यूम के लिए फेमस है, ब्रह्मपुत्र भी अपने वॉल्यूम के लिए फेमस है, और जाकर बांग्लादेश में जब ज्वाइन करती हैं तो माइटी रिवर का फॉर्मेशन होता है। और दो ज्वाइंट स्ट्रीम्स ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड मेघना इन द रीजन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, it is known as the Meghna. This mighty river, mighty in terms of its volume of water, mighty in terms of its large basin, this mighty river with water from Ganga and Brahmaputra flows into Bay of Bengal or fall into Bay of Bengal or drain into Bay of Bengal। तीनों बात कह सकते हैं, ये जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ डाइवर्ट होती हैं। And the delta formed by this river is known as Sundarban Delta, क्योंकि इसका जो फर्टाइल रीजन है, इसका जो आपका सिल्ट सैंड है, उससे वो एरिया में पूरा दलदली एरिया क्रिएट होता है, जिसमें कि जो फॉरेस्ट डेवलप हुआ है उसमें सुंदरी नाम का ट्री मैक्सिमम पाया जाता है। इसलिए द डेल्टा फॉर्म्ड बाय रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज आल्सो नोन एज Sundarban Delta and is considered as the largest delta of the world. So this is Ganga river system. ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। अब आते हैं हम लोग आगे। ये तो था कि गंगा कैसे निकलती है, टू हेड स्ट्रीम, पहला क्वेश्चन। उसके बाद कहाँ ज्वाइन की, देवप्रयाग, दूसरा क्वेश्चन। वहां से क्या नेम हुआ, गंगा, तीसरा क्वेश्चन। इसका लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, यमुना, चौथा क्वेश्चन। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, पांचवा क्वेश्चन। आपका चंबल बेतवा गंगा को कैसे ज्वाइन करती हैं, तो थ्रो रिवर यमुना, छठा क्वेश्चन। नेम द रिवर विच डायरेक्टली ज्वाइन रिवर गंगा फ्रॉम साउथ, तो रिवर सोन है, सातवां क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार के बाद गंगा प्लेन में उतरती हैं। यहाँ पे सभी ट्रिब्यूटरीज के मिल जाने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, बड़े एरिया से फ्लो करती हैं। कहाँ तक फ्लो करती रहती हैं, टिल फरक्का। फरक्का क्या है, द नदर्न मोस्ट टिप ऑफ सुंदरबन डेल्टा। यहाँ से रिवर साउथवर्ड टर्न करती हैं लोलैंड की ओर, एंड ड्यू टू डिपोजिशन हियर रिवर बाइफरकेट्स इनटू टू पार्ट, भागीरथी एंड हुगली। और मेन स्ट्रीम जो है वो नीचे फ्लो करते करते कहाँ आ जाती है, बांग्लादेश में। In Bangladesh, it is joined by river Brahmaputra. The joint stream of Ganga and Brahmaputra is called Meghna, and they finally fall into Bay of Bengal. On their way, they perform
intensive depositional action and deposited silt. They are further divided into many channels and deposited their silt on their way, which is responsible for formation of Sundarban Delta. आगे बढ़ते हैं. In the journey of Ganga, Ganga mostly flows through 3 different stages. Their youth stage is generally considered as the stage where Ganga flows through mountainous area. Their mature stage is the name given to their flow of Ganga in the region of plain. Their old stage where river Ganga flow at lowlands at their mouth and perform intensive depositional action. तो 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज. और ये तीनों स्टेज में कई तरह का एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं. यूथ स्टेज में मैक्सिमम जो इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी होता है, मैच्योर स्टेज में ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन होता है, ओल्ड स्टेज में सिर्फ डिपोजिशन होता है. यूथफुल स्टेज में क्या होता है, आई शेप्ड वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू इरोजन. मैच्योर स्टेज में क्या होता है, फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन होता है, मियांडर्स बनते हैं, ऑक्सबो लेक्स बनते हैं. और ओल्ड स्टेज या लोलैंड में क्या बनता है, डिपोजिशनल एक्शन से डेल्टास का फॉर्मेशन होता है. इस तरीके से अपने तीनों स्टेज में कई तरह की आकृतियों का निर्माण करती है रिवर गंगा. रिवर गंगा का अपना तीनों स्टेज में जो टोटल लेंथ है वो है करीब करीब 2500 किलोमीटर. Look at figure 3.4. Can you identify the type of drainage pattern formed by Ganga river system? चलो देखो, फिर से आ जाओ फिगर 3.4 में. गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज कैसा दिख रहा है, एक पेड़ हो और उसका ब्रांचेज हो, कुछ दाया तरफ गया है, कुछ बाया तरफ गया है, कुछ नीचे की ओर गया है, दिख रहा है ऐसा. इंडस का भी वैसा ही दिख रहा है, ब्रांचेस ऑफ ट्री के जैसा ही उसका. और गंगा का भी कैसा दिख रहा है, एक जगह में देखो गंगा देखो, यमुना देखो, चंबल देखो, बेतवा देखो, सोन देखो नीचे से, इधर घाघरा देखो, गडक देखो, क्या लग रहा है अलग अलग जगह से एक एक धारा आकर मिल रही है जैसे पेड़ का ब्रांचेस हो. तो इस तरह का जो डिजाइन ड्रेनेज पैटर्न क्या है, डिजाइन मेड बाय द फ्लो ऑफ रिवर. तो यहाँ पे किस तरह का पैटर्न है, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज के जैसा. तो ये बेसिन एरिया में कैसा पैटर्न गंगा शो करती है, इट रिजेंबल्स जस्ट लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. और इस तरह का ब्रांचेस ऑफ ट्रीज का जो पैटर्न बनता है रिवर के द्वारा, उस पैटर्न को कहते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न. क्या कहते हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न. ठीक है. So it resembles like a branches of trees and provide dendritic pattern. Dendritic drainage pattern बनाती है river गंगा. Ambala is located on the water divide between Indus and Ganga. हम लोग पहले ही पढ़े चुके हैं शुरू में ही. The plains from Ambala to Sundarban stretch over nearly 1800 किलोमीटर. गंगा का टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर, जिसमें से 1800 किलोमीटर एरिया ऐसा है जहां पे गंगा बिल्कुल प्लेन से फ्लो करती है. ठीक है. बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर. गंगा जो है थिक फर्टाइल जेंटल स्लोप का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि पूरा 2500 का किलोमीटर का जो एरिया में 1800 एरिया तो इसका प्लेन ही का है, और जो 2500 से 1800 का जो प्लेन एरिया में जो गंगा का जो क्या कहते हैं हाइट और डेप्थ है वो बहुत ही कम है. देखने से एट ए ग्लांस देखने से लगता है कि बिल्कुल एकदम समतल मैदान है, समझे, जहाँ पे कोई ऊंचावच नहीं है, ऊंचाई नीचाई नहीं है. लेकिन क्योंकि पूरा इतना लंबा किलोमीटर में सिर्फ 300 मीटर का ही ढाल है, और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि हर 6 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर ढाल बनता है लोलैंड तक आने में. तो 6 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का ढाल कोई बड़ा बात नहीं है. तुम लोग स्कूल के आसपास भी खेत देखते हो तो दिखता है बीच बीच में गड्ढा, लेकिन एट ए ग्लांस देखने पर प्लेन ही लगता है. इसीलिए गंगा का जो मैदान है बिल्कुल समतल है, बिल्कुल प्लेन के रूप में दिखता है. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometers. Therefore, the river develops large meanders. ज्यादा फॉल है नहीं, तो बीच बीच में ही जो डिपोजिशन करती है लॉन्ग जर्नी में, उसकी वजह से रिवर जो है घूम घुमा